Very good evening, all the participants. Today we will be discussing individual insolvency. I discussed some of the basic provisions regarding individual insolvency that day, and I hope you have already gone through some. आपका नेटवर्क आज स्टेबल नहीं है। बस अभी हो जाएगा, वो मैं एक्चुअली दूसरे नेटवर्क पे ज्वाइन किया ना, पहले हाँ दूसरा हाँ नेटवर्क था, अब हो जाएगा 1 मिनट में, ओके। अभी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो 1 मिनट की बात है। So I hope now my screen is visible. Is it visible? Yes, yes. Okay. So individual insolvency. This is a single page on individual insolvency. So this is going to be an interactive session. I am not going to teach you anything, rather I am going to ask you some questions. अच्छा सिंह साहब ये बताइए कि for initiating this insolvency resolution process of personal guarantors to corporate debtors, what are the things you have to study? सर सच में पूछे तो मैं भी इसमें जीरो स्टडी किया सर। हाँ जी, टाइम ही नहीं मिल पाया सर, इसमें कुछ स्टडी नहीं किया। कोई बात नहीं। अजय जी आप बताइए, अजय जायसवाल जी आप बताइए कि besides the sections, what are the other things you will study for having a complete understanding? Sections, you are aware, 94 to 120. Yes. Suppose we want to understand theoretically what is individual insolvency, है ना? As of now, we already know that only provisions regarding personal guarantors to corporate debtors have been notified, है ना? इतना तो मालूम ही है. So now my question is, besides studying this section 94 to 120, what are the other things we have to study to get a wholesome picture theoretically? सर ये मतलब कि जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी और कॉर्पोरेट जो अपने रिजोल्यूशन सीआरपी पढ़ रहे थे, हाँ, इसमें स्टार्ट होता है कि जस्ट लाइक जिस इंडिविजुअल ने कहीं नहीं, जैसे सीआईआरपी में हम पढ़ते हैं तो सपोज वी आर अंडरस्टैंडिंग सीआईआरपी में हम क्या पढ़ते हैं? वी रीड द सेक्शंस, वी रीड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, वी रीड द रेगुलेशंस, राइट, है ना? सो सिमिलरली हियर, यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है? सेक्शंस के अलावा क्या पढ़ना है? सर कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलेशंस भी है इसमें, रेगुलेशंस भी और रूल्स एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, वो भी है और पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, राइट, ठीक है ना? तो दोनों हमारे को पढ़ने हैं. ओके. नाउ 94 and 95, ठीक है? सपोज यू आर एन एग्जामिनर. 94 में debtor can apply for this insolvency resolution process. 95 creditor can apply singly or jointly. Now my question is, भाई आप एग्जामिनर हो, एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन द कोड. He may frame a question like this: there is a financial creditor and there is an operational creditor. XYZ Limited is a company. Now in XYZ Limited company, they took a loan from a bank and Mr. X stood as personal guarantor. Since there was a default in XYZ Limited and company could not pay, so they initiated the proceedings against Mr. X. Okay. Now there are two creditors in the company. One is financial creditor, another is operational creditor. So whether both can join hands or not, this is the question. थोड़ा सा रिपीट करेंगे हाँ, रिपीट करता हूँ. ज्वाइन सर. हाँ, रिपीट करता हूँ. रिपीट में ये है कि XYZ Limited is a company. They took a loan from PNB.
कंपनी incurred the default and they could not pay. Mr. X stood as personal guarantor. ठीक है. Now PNB wants to initiate insolvency resolution process against this personal guarantor. There is a supplier also. So the question here is whether that supplier can join hands with PNB. This is the question. सर यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे लिखा हुआ है सर आइदर बाय हिमसेल्फ और जॉइंटली विद अदर क्रेडिटर्स। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि डेफिनेशन नहीं है कि देयर शुड बी ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर और एफसी शुड बी अदर, सो जॉइंट Right. होगा। अच्छा. सिंगली और जॉइंटली, क्रेडिटर सिंगली और जॉइंटली। हाँ. अब तो there is no such distinction between financial creditor and operational. Now let us see the form also. भाई फॉर्म के थ्रू ही तो अप्लाई करेगा ना. सर अमाउंट सर तो What is फॉर्म the बताइए, amount? फॉर्म कौन सा है इसके लिए. रूल्स में दिया फॉर्म आपको रूल्स में मिल जाएगा. हाँ सर. फॉर्म ए है आपका एप्लीकेशन बाय गारंटर, नहीं तो बैंक्रप्सी होगी। इंसॉल्वेंसी के लिए. ये आपका आ गया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रेगुलेशंस. तो रेगुलेशन में तो फॉर्म मिलने का नहीं मेरे हिसाब से. रूल्स में मिलेगा सर ना. हाँ, रूल्स में मिलेगा क्योंकि रेगुलेशन में जो फॉर्म है वो तो कुछ और ही है. एक तो ये दे रखा है इसमें रेगुलेशन में, फॉर्म ए है रिटन कॉन्सेंट. फॉर्म बी फिर आपका है application by creditor to initiate bankruptcy. फॉर्म बी क्लेम है, क्लेम विद प्रूफ. सब ठीक है. फॉर्म सी, फॉर्म सी आपका प्रॉक्सी फॉर्म है. तो इसके अंदर 3 ही फॉर्म है. ठीक है ना. अब हम देखते हैं एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. इसके अंदर क्या बोलता है, एप्लीकेशन बाय गारंटर इन फॉर्म ए. अब नाउ लेट अस हैव ए लुक एट. अच्छा, एप्लीकेशन बाय गारंटर, ये तो गारंटर नहीं है. एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर होगा. तो एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू गिव डिमांड नोटिस. So now here is the question is whether PNB will also give the demand notice या PNB फाइनेंशियल क्रेडिटर उसको जरूरत नहीं है डिमांड नोटिस देने का. Not required. है Not required. नॉट रिक्वायर्ड. फॉर्म बी, लेट अस हैव ए लुक एट फॉर्म बी. क्यों व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन, वो क्या बोल रहा है, ए डिमांड नोटिस अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 95 शैल बी सर्व्ड ऑन द गारंटर डिमांडिंग पेमेंट. और एक बार फॉर्म बी, लेट अस हैव ए लुक एट फॉर्म बी. So from form B itself we can make out कि भाई whether both form of demand notice. ये तो सर क्लेम विद प्रूफ बाय क्रेडिटर ही है डायरेक्ट। कौन सा? फॉर्म बी। नहीं नहीं, वो आप रेगुलेशंस में देख रहे हो. अच्छा 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 अच्छा। इसीलिए मैं आपकी किताबें खुलवाना चाह रहा हूं कि भाई आप किताब खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कहाँ पढ़ना कहाँ कहाँ से है. तो फॉर्म बी आपको पहले तो देखना है एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ पर्सनल गारंटर्स. आप कहां से पढ़ रहे हो पहले तो ये बताओ, बुक से, कहां से? सर बुक आज मेरे पास हैंडी नहीं है, तो मैं आपके पीपीटी से देख रहा था। आप पीपीटी में भी होगा. हाँ वही मैं सर्च कर रहा था। हाँ. तो फॉर्म बी डिमांड नोटिस है. तो पहला क्वेश्चन कि वेदर दिस डिमांड नोटिस हैज टू बी सेंट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर आल्सो और ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर. ऐसा तो कोई लगता नहीं है. ये तो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी यही फॉर्म यूज करेगा और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी यही फॉर्म यूज करेगा. तो जिसका भी अनपेड डेट है वो वाला वो ये फॉर्म भरेगा पहले तो.
ठीक है जी। तो सपोज देर आर टू क्रेडिटर्स, so both creditors will give demand notice or one demand notice will be sufficient. If One they demand note. if they are going jointly, one will be suffice. नहीं, वन से कैसे होगा भाई? हो सकता है किसी का पेमेंट कर दिया हो, एक का पेमेंट ना किया हो। हर एक आदमी अपना अपना डिमांड नोटिस भेजेगा, पहले तो अपने डेट का ही भेजेगा ना, दूसरे के डेट का उसको जॉइंटली कर रहे हैं तो सबको ही करना पड़ेगा, इंडिविजुअली ये तो चलेगा। डिमांड नोटिस तो एप्लीकेशन इंडिविजुअली ही जाएगा। एप्लीकेशन ज्वाइंटली होगा, लेकिन डिमांड नोटिस हाँ, डिमांड नोटिस तो जॉइंटली नहीं है ना। राइट। अब वो Okay. क्या करता है, वो केस स्टडी ऐसी बना देता है, बंदा सोचता है यार मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया, अब हम मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा वहां पर। वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि घूम जाता है बंदा वहां पर। अब जैसे छोटी सी बात है, देखो, नहीं कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, लेकिन हमारे को कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो अब अगर डिमांड नोटिस के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे हम कि एवरी क्रेडिटर हैज टू फॉर्म फिल अप दिस फॉर्म। एफसीज को भी भेजना पड़ेगा। एफसी को भी देना पड़ेगा, और ऐसा कोई, हाँ पहली बात एफसी को देना पड़ेगा, ओसी को भी देना पड़ेगा, है ना। अजय जसवाल जी, आपको एक केस स्टडी बनानी है इसके ऊपर, ओके। है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई वेदर फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन फाइल द एप्लीकेशन जॉइंटली। दिस इज आंसर इज यस, है ना, इन केस ऑफ पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। दूसरा, डिमांड नोटिस, वेदर इट हैज टू बी सेंट इंडिविजुअली और वन डिमांड नोटिस इज सफिशिएंट। अपने को तो लगता है कि इंडिविजुअली भरना पड़ेगा हर एक को, इंडिविजुअली सर, वही लग रहा है। अपने अपने डेट का देगा ना वो। हाँ, क्योंकि सबका ड्यू डेट अलग होगा सर ना, हाँ, किसी का ड्यू सबका डेट डेट अलग भी हो, किसी अलग का। होगा, डिफॉल्ट भी अलग हो हाँ सकता है। लॉजिकली सर हाँ जाए तो अलग अलग ही देना पड़ेगा। एप्लीकेशन सर किसी ने बोला एप्लीकेशन वी कैन वन कैन फाइल हाँ जॉइंटली, बस हाँ हाँ, डिमांड नोटिस कैन बी शुड बी सेंड डिमांड नोटिस तो सेपरेट ही है। सेपरेटली। सेपरेटली। है ना। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन और, जिसका डिफॉल्ट नहीं हुआ क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है, या सिर्फ जिसका डिफॉल्ट हुआ वो ही ज्वाइन करेगा? तो भाई इसमें मान डेट इन लीजिए एक का डिफॉल्ट ही लिख डिफॉल्ट रहा है। हुआ, दूसरे का नहीं हुआ, वो कहता मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या वो ज्वाइन कर सकता है? Yes, नहीं sir. सर, इसमें Yes, अनपेड डेट इन डिफॉल्ट लिखा हुआ है इसमें तो। कर सकता हूँ। नहीं करेगा। क्लेम फाइल करेगा भाई। हाँ बिल्कुल, और एडमिट होने के बाद क्लेम फाइल करेगा। जिसका डिफॉल्ट होगा वही इसमें ऐप ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइंटली का मतलब ये नहीं कोई भी ज्वाइन कर ले, फिर तो कोई क्लेम फाइल ही नहीं करेगा, सारे ही एप्लीकेंट ही बन जाएंगे, है ना। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, देखो। अब क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना, वो तो एग्जामिनर है, उसको आप उसका पर्पज ये है आपको कंफ्यूज करना, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछना जो जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं है कोड में, वहीं पर ही कैच है बस। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया डिमांड नोटिस। अब एक बार एप्लीकेशन बाई क्रेडिटर देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। क्या बोलता है इसमें? बोल रहा है अंडर रूल 7(2). तो अंडर रूल 7(2) में ये एप्लीकेशन आपको भेजनी है। और डिमांड नोटिस का भी देख लेते हैं हम। डिमांड नोटिस का रूल 7(1) है, तो एक बार डिमांड नोटिस के बारे में भी रूल भी पढ़ लेते हैं कि रूल 7(1) क्या बोलता है। रूल 7(1) बोल रहा है एप्लीकेशन बाई क्रेडिटर ए डिमांड नोटिस under clause B of subsection 4 of section 95 shall be served on the guarantor demanding payment of the amount of default। देखो आगे ना, तो डिफॉल्ट वाला ही जो है उसी का डिमांड नोटिस जाएगा फॉर्म बी में। एप्लीकेशन under subsection 1 of 95 shall be submitted in form C along with the fees of 2000 rupees। ये तो खैर चलो फीस है। The creditor shall serve forth with a copy of the application referred to in sub rule 2 to the guarantor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor। तो कॉर्पोरेट डेटर को भी कॉपी देगा ये। In case of joint application, the creditors may nominate one amongst themselves to act on behalf of all the creditors। ठीक है, वो एप्लीकेशन की बात कर रहा है बेसिकली, यस, जॉइंट एप्लीकेशन। है ना। हाँ,
No, application will be single, na sir. एप्लीकेशन तो सिंगल ही होगी, Right. एप्लीकेशन सिंगल होगी, लेकिन डिमांड नोटिस इंडिविजुअली जाएगा। डिमांड नोटिस में जिसका डिफॉल्ट है वही तो एक बार एप्लीकेशन में देख लेते हैं ना। एप्लीकेशन में गिव ए क्लू टू अवर क्वेरी। फॉर्म सी, फॉर्म सी क्या बोल रहा है? टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन द नेम ऑफ द गारंटर, एप्लीकेशन नेम ऑफ द क्रेडिटर हियरबाय सबमिट्स एप्लीकेशन, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार, सिन, पैन, जीएसटीएन, बैंक अकाउंट्स, particulars of the guarantor, list of associates of the guarantor, including relatives who may be creditors to the extent known। अच्छा, ये जो क्रेडिटर है इसको पता होगा कि गारंटर के एसोसिएट कौन कौन है? पता होगा क्या? पता हो सकता है सर, लिखते हैं प्रपोजल्स में तो लिखते ही हैं। है? प्रपोजल्स में लिखते ही हैं, जब क्रेडिट प्रपोजल होता है तो उसमें लिखा जाता है एसोसिएट कंसर्न कौन कौन से हैं, मतलब कंपनी के भी, गारंटर्स के भी। नहीं, यहाँ तो देखिए एसोसिएट का डेफिनेशन अलग है। यहाँ ये सर पता, एसोसिएट, वो एसोसिएट नहीं है। सर मुश्किल है बताना। एसोसिएट का मतलब क्या हो गया? एसोसिएट मतलब इमीडिएट फैमिली वो और इमीडिएट रिलेटिव्स भी है। नवंबर, बहुत कुछ रिलेटिव, बहुत लोग आ वो जाते हैं कहाँ से ना। पता होगा उसको? इसीलिए लिख दिया टू द एक्सटेंट नोन। अगर पता है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम्म। सर कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं पता रहता, बहुत सारा एप्लीकेशन देखा है मैंने उसमें। हाँ जो कॉर्पोरेट गारंटर रहता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दे पाते हैं। हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नहीं, वो तो फिर ऐसा है कि आपको यू हैव टू गेट इन टच विद द बैंकर। बैंकर ने जब लोन दिया, उसने हाँ, गारंटर को एक्सेप्ट बैंकर किया। से भी मांगा तो वो भी प्रोवाइड हुआ, बोले हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए उसके पास। और उसके अलावा क्या होता है, वो टाइम टू टाइम जब रिन्यूअल के टाइम पर उनसे नेटवर्क सर्टिफिकेट भी लेते हैं नेटवर्क सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ओपिनियन रिपोर्ट बनाई जाती है, गारंटर का। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी ली जाती तो है। उसमें भी और नेटवर्क सर्टिफिकेट में भी तो काफी सारी डिटेल्स रहती केवाईसी डिटेल सिस्टम में है। होती है, उनमें भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह होता है, मिल सकता है। लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द गारंटर एज ऑन द एप्लीकेशन डेट टू द एक्सटेंट नोन। ठीक है ना? वो कह रहा है जितना पता है वो बता दो। नेम ऑफ द डायरेक्टरशिप्स हेल्ड इन द preceding 3 years, marital status, details regarding personal guarantor, name of the corporate debtor for which guarantee is given, any current or past position held in the corporate debtor, whether corporate debtor is an associate to the extent known, any securities held, whether the guarantor is not resident in India, the name and person of person resident in India authorized to accept the service of process on guarantors behalf। एक बंदा था, उसने गारंटी दे दी, अब वो कनाडा शिफ्ट हो गया, अब वो कनाडा का ही सिटीजन बन चुका है, तो क्या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग आप इनिशिएट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में? यस सर। है ना? तो उसमें कोई बार नहीं है। ये यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 15 भी उसको आंसर करता है कि वेयर द गारंटर इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, द नेम एड्रेस ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन गारंटर्स बिहाफ। particulars of debt, total debt, date on which default occurred, secured debt, unsecured debt, details of retention, mutual credits, details of succession certificate under the Indian Succession Act। तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट का जरूरत किस केस में पड़ेगा? डेथ केस में। डेथ। किसका डेथ हुआ होगा? तो गारंटर का। गारंटर गारंटर का नहीं, जो लोन दिया रहेगा। गारंटर का नहीं, जिसने लोन दिया है उसका। लोन दिया है। पर्टिकुलर्स ऑफ डेप्ट्स, ओके। अनसिक्योर्ड, इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड। भाई एक पिताजी ने लोन दिया था, पिताजी की हो गई डेथ, अब बेटा कर रहा है, उसके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है ना? या प्रोबेट ऑफ विल है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। राइट।
provision of law, contract, or other document, a statement of a bank account where deposits are made or credits normally received by the creditor from the date on which the rate was incurred. जब से डेट दिया था तब से अब तक की बैंक स्टेटमेंट लगाओ. Statement of the creditor in respect of excluded debts. सर मेरा एक क्वेरी था, हाँ हाँ. अगर ये ज्वाइंटली करते हैं एप्लीकेशन बहुत क्रेडिटर मिलके, हम्म. तो फिर ये डिटेल तो बार बार भरनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो एक बंदे का डिटेल जाएगा ये। हाँ वो देख रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं, एक मिनट. हम्म, ये इसीलिए तो फॉर्म देख रहे हैं. फॉर्म में कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा इसका. हाँ सर। उसके बाद में पार्ट 4 आ गया, पर्टिकुलर्स ऑफ एंड डिक्लेरेशन बाय इंसॉल्वेंसी प्रोस्टल. डिक्लेरेशन बाय इंसॉल्वेंसी प्रोस्टल तो पार्ट 3 इन दैट केस ज्वाइंटली रहेगा, तो आई थिंक पार्ट 3 दो बार जाएगा. है. पार्ट 3 दो अलग अलग रहेंगे दोनों का. 4 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे तो उतने बार जाएगा ना, तो हाँ राइट. हम्म. 4 रहेंगे तो 4 बार, 5 रहेंगे तो 5 बार। जितने भी अलग अलग जॉइंट हाँ क्रेडिटर्स हाँ रहेंगे हाँ। उनका अलग भाई या अलग. तो एक्सेल शीट बना करके उसको कंसोलिडेट करेंगे वो, यस यस सर, एज पर एनेक्सर करिए। एज पर एनेक्सर कर देंगे ना. इस फॉर्म तो में तो एक ही फिगर हाँ। जाएगी. जैसे हाँ मान सर। लो वो टोटल डेट कह रहा है, तो टोटल डेट में तो टोटल डेट ही हम्म आ जाएगा. और इसके साथ में वो फिर मान लीजिए 4 है 5 है, एक्सेल शीट बना के उसको सबको नाउ दे आर आस्किंग डेट ऑन विच द डेब्ट वाज ड्यू, तो इसको हाँ एज पर एनेक्सर कर सकते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबका बिल्कुल. डेट अलग अलग रहेगा। सबका डेट अलग अलग रहेगा जब ड्यू हुआ. हाँ सर। डिफॉल्ट का डेट भी अलग हो सकता है, नेचर ऑफ डेट भी अलग अलग हो सकता यस सर। है कि नहीं. ये हो गया. चलो फॉर्म के दर्शन तो कर लिए. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, कि वंस एन एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड कैन इट बी विड्रॉन. एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद विड्रॉ हो सकती है क्या? क्योंकि यहां ये रूल 11(2) पढ़ते हैं हम पहले. रूल 11(2) क्या बोलता है इसका? रूल 11(2) बोलता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. हाँ, तो दोनों केसेस में विड्रॉ हो सकती है. तो बिफोर इट्स एडमिशन ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट, आफ्टर इट्स एडमिशन ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट, इफ 90% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्री टू सच विड्रॉल. ठीक है. An application for withdrawal under clause B of sub rule 1 shall be in form D. तो एक बार फॉर्म डी के भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पूछना है यहाँ पर? हमें ये पूछना है कि क्या यहाँ पर भी गारंटी देनी है क्या? सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ ये जो पूछना है कि 90% ऑफ द क्रेडिटर, तो हाँ. 90% ऑफ द ऑल क्रेडिटर और ओनली जो एप्लीकेंट क्रेडिटर उन्हीं का इनका डिफॉल्ट हुआ है। नहीं, ये तो जो भी, ये तो देखिए ऐसा है, जब एडमिशन हो गया तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, करेक्ट सर। तो उसके उसी का 90% लेंगे आप, जिसके बाद भी वोट शेयर है. गॉट इट गॉट इट। वैसे तो 90% लिखा, 90% ऑफ क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर का मतलब यहाँ नंबर ऑफ क्रेडिटर नहीं है मेरे हिसाब से. तो या फिर आपको वैल्यू होलसेल के रहेगा। हिसाब से करना पड़ेगा. मैं ये सोच रहा था कि जो एप्लीकेंट क्रेडिटर थे उनको नहीं पकड़ना है ना, जो बाद में नहीं भी नहीं ज्वाइन नहीं, करेंगे एप्लीकेंट जिनका क्रेडिटर को डिफॉल्ट थोड़ी, नहीं ना हुआ। ना ना, हाँ, टोटल क्रेडिटर सारे. टोटल टोटल क्रेडिटर। भाई देखिए, देयर कुड बी 2 सिचुएशन. नंबर 1, बिफोर इट्स एडमिशन. बिफोर इट्स एडमिशन तो कमिटी तो है ही नहीं, क्रेडिटर्स नहीं है बच्चे, कमेटी नहीं है, ओनली एप्लीकेंट एप्लीकेंट इज है। देयर, है ना. तो एप्लीकेंट विल मेक द रिक्वेस्ट एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे एक्सेप्ट इट, खत्म बात. बट वंस इट इज बीन एडमिटेड, फिर क्या होगा? तो 90% ऑफ द क्रेडिटर्स हैव टू एग्री. और 90% ऑफ क्रेडिटर्स वो तो फिर मीटिंग में ही होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मीटिंग होगा, उसमें ही होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव ए लुक एट फॉर्म डी एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई कोई गारंटी का भी प्रोविजन है क्या. वो गारंटी जो वहां पर देनी पड़ती है, सीआईआरपी में था ना, हमने पढ़ा था. तो यहां पर भी कुछ ऐसा प्रोविजन है क्या, वो भी देख लेते हैं. पहले तो एक बार फॉर्म डी के दर्शन कर लेते हैं. ये है जी फॉर्म डी. फॉर्म डी क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल. विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन. आई हैड फाइल्ड द एप्लीकेशन, आई हियर बाय विड्रॉ. दोनों विड्रॉ कर सकते हैं, डेटर भी और क्रेडिटर भी. ये भी देख लीजिए 94 95, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन.
अजय जायसवाल जी, आपको मेरी हेल्प करनी है, आपको केस स्टडी बनानी है इसमें बढ़िया सी, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ओके सर। बना सकते हैं, मुश्किल थोड़ी है, क्यों? डिस्कस तो हम कर ही रहे हैं ना, यही तो पॉइंट डालने हैं उसमें, बस और क्या। जी तो सर, इसमें एक पॉइंट किया ये हुआ डाल देंगे अभी, एक दो कि- केस किया हुआ अभी, तो आई विल बी एबल टू डू दिस। हाँ, कि भाई 94 95 दोनों ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं विड्रॉल के लिए। वही चार ऑप्शन बना देंगे, ओनली डेटर कैन विड्रॉ, ओनली क्रेडिटर कैन विड्रॉ, बोथ कैन विड्रॉ, इस तरह से द सेड सर तो एप्लीकेशन वाज। जो एप्लीकेंट रहेगा वही विड्रॉ करेगा ना, मान लीजिए डेटर अगर एप्लीकेंट है तो विड्रॉ कर सकता है, अगर क्रेडिटर एप्लीकेंट है तो हाँ डेटर तो हाँ, बिल्कुल सवाल नहीं बिल्कुल उठता। बिल्कुल, वही वही, हाँ हाँ। नहीं, हमारा क्वेश्चन तो अलग था ना, हमारा क्वेश्चन ये हाँ था, सर। कई बार होता है कि डेटर ही विड्रॉ कर सकता है या क्रेडिटर विड्रॉ कर सकता है, हमारा क्वेश्चन यहाँ करेक्ट पर ये है। करेक्ट। तो वो ये कहता है कि एप्लीकेंट ही विड्रॉ कर सकता है, वहां तो डेटर क्रेडिटर वाली कॉन्सेप्ट नहीं आती ना। वहां तो क्या कहता है वो, कि भाई अगर हम वहां पर देखें ना, सीआईआरपी में, तो सीआईआरपी में क्या है, जिसने भी एप्लीकेशन विड्रॉ की है, तो क्या सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन भी विड्रॉ हो सकती है? अगर हम सीआईआरपी पे चलते हैं, सीआईआरपी पे क्या सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है? द आंसर इज यस, हो सकती है। 7 9 और 10, 12 ए में लिखा है डायरेक्टली, है ना? तो यहां पर भी ऐसा ही है, 94 95 डेटर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स हैव अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन अंडर रूल 11। रूल 11 देख लेते हैं। अच्छा, बैंक गारंटी भी दे रखा है। द बैंक गारंटी टुवर्ड्स एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अटैच्ड। तो जो एप्लीकेंट है वो बैंक गारंटी भी लगा रहा है, ठीक है ना, टुवर्ड्स एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो काफी चीजें इसमें क्लियर हो गई। और जो रूल 11 एक बार पढ़ लेते हैं, क्या रूल 11 क्या कहता है? ये रूल 11 है। रूल 11 में कुछ भी नहीं लिखा, रूल 11 में तो फॉर्म लिख रूल दिया 6 बस, एंड रूल 7 पढ़ना पड़ेगा सर। है। रूल 6 एंड रूल 7। और रूल 6 में तो एप्लीकेशन बाय गारंटर है बस, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। रूल 6 रूल 7 में कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो ऐसा है, एप्लीकेंट विड्रा कर सकता है, डेटर ने एप्लीकेशन लगाई वो विड्रा कर लेगा, क्रेडिटर ने लगाई वो विड्रा कर लेगा। एडमिट हो गई तो उसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर 90% मेजोरिटी से विड्रा कर सकते हैं। एप्लीकेंट का बैंक गारंटी लगा देगा टुवर्ड्स एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। बस इतनी सी बात है। और एस्टिमेट कौन देगा, कि भाई कितने की बैंक गारंटी देनी है? आरपी आरपी। हाँ, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड बैंक गारंटी टुवर्ड्स एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस बाय द आरपी इज अटैच्ड। तो ये हो गया। चलिए, यहां तक अब हम दोबारा चलते हैं वहां पर अपने केस स्टडी पे ही। शुरुआत में चलते हैं, जस्ट अ मिनट। 94, ठीक है जी। तो ये हो गया, कुछ कुछ चीजें हमारे को क्लियर हुई कि भैया क्रेडिटर कोई भी हो, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल भी, दे कैन जॉइन हैंड्स एंड दे कैन मेक एन एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं है। विड्रॉल वाला भी प्रोविजन हमने देख लिया। यस। इंटरिम मॉरिटोरियम, इंटरिम मॉरिटोरियम में ये है कि बेसिकली नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द डेट्स, है ना। बाकी कोई भी क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग पे बार नहीं है, सिर्फ डेट से जो रिलेटेड प्रोसीडिंग्स है उन पर ही बार है। अब आप शिलोंग में जाके हस्बैंड को धक्का दे दिया, उस पे बार नहीं है, वहां वो चल जाएगा उस पे केस। वो कह देगा भाई इंटरिम मॉरिटोरियम लगा, इंटरिम सही बात मॉरिटोरियम है। वगैरह कुछ नहीं है वो, है कि नहीं? ये, चलिए, उसके सर बाद इसमें मोरेटोरियम में कुछ जगह पे लिखा है ऑल डेट्स, कुछ जगह पे लिखा है सच डेट्स। कहा, मोरेटोरियम में, इंटरिम मोरेटोरियम। एक मिनट, इंटरिम मॉरिटोरियम का मैं सेक्शन 96 खोल लेता हूं एक बारी। सेक्शन 96, 96 पढ़ रहे हैं ना? यस। पहले में तो लिखा इन रिलेशन टू ऑल द डेट्स, ठीक है। वो एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट एंड शैल नॉट इनिशिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट।
दैट्स तो मीन कहाँ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों आ गए इसमें। बिल्कुल, और क्या, वो तो है ही। देखिए ऐसा होता है ना भाई, यहां पर क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को राइट है इवन ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में भी इफ ही डजंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द कमिटी, है ना, ऑन रीपेमेंट प्लान, तो वो क्या कह देगा, वो कह देगा भाई आई विल बी वोटिंग ओनली फॉर द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट। अभी उस चीज को अलग से डिस्कस करते हैं, है ना। पहले अभी इंटरिम मॉरिटोरियम और मॉरिटोरियम का फर्क देख लेते हैं। आप बता रहे थे कहाँ सच सच डेट कहाँ लिखा हुआ, बताइए। फ्रेश स्टार्ट में। फ्रेश स्टार्ट को छोड़ो ना, अब यहाँ पे बात करो इंटरिम मॉरिटोरियम, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, यहाँ ऑल डेट्स ही है ना। और इंटरिम मॉरिटोरियम और मॉरिटोरियम में कोई फर्क है क्या, क्या फर्क है? नो, आई एम लिविंग। So, interim moratorium is applicable till the हाँ application. नहीं वो ठीक है, मतलब माय पॉइंट इज वेदर रिगार्डिंग दिस initiation of proceedings in respect of any debt, whether there is any difference in the interim moratorium and moratorium. My question is with reference to that. Not much, sir. नो सर, तो नहीं यहाँ पर भी रहेगा। क्या बोलता है, ड्यूरिंग moratorium period any pending legal action or proceeding shall be deemed to have stayed, और यहाँ का बोलता है an interim moratorium shall commence on the date in relation to all the सेम debts. सेम बोलता है, वही चीज है। एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हाँ एनी डेट shall deemed to have been stayed. हाँ The creditors of the debtor shall not initiate any legal action or proceeding in respect of any debt. सेम चीज यहाँ पे भी है। एक और भी बात लिखी है जो इंटरिम मॉरिटोरियम में नहीं लिखी, ये तीसरी बात, ये लिखा ना, द डेटर शैल नॉट ट्रांसफर, अलाइनेट, एनकम्बर और डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ हिज एसेट्स और हिज लीगल राइट्स और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरिन। ये वाली बात इंटरिम मॉरिटोरियम में तो नहीं लिखी है। सी पॉइंट 1012C। Provisions section. यस सर। Yes, sir. सेक्शन ये पूरा 1012 3 नंबर नहीं लिखा। टू Yes. सी द डेटर शैल नॉट ट्रांसफर इन अलाइनमेंट है लिखा हाँ, हुआ है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये इंटरिम मॉरिटोरियम में तो नहीं है। Yes, sir. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब फाइलिंग हो जाए तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज he has filed the application, ठीक है। Now before the application is admitted, can he sell his assets? Can he sell his property या नहीं? कि हम तो कहेंगे भाई 101 में तो लिखा है और 96 में तो ऐसी बात कोई लिखी नहीं है। Yes, sir. क्यों जी, क्या कहना है आपका? मेरा क्वेश्चन समझ गए ना? Yes, sir. बट लिखा नहीं है, बट आई थिंक इट्स अप्लाइड कि वो ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता वंस द एप्लीकेशन इज बीन नहीं, इनिशिएटेड। थिंक से तो बात नहीं बनेगी, हमें तो पेयर कोड में बताना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ सर है। उसमें उसमें लिखा है ना ऑल डेट्स हैव टू सीज्ड। नहीं, डेट थोड़ी, प्रॉपर्टी को डेट थोड़ी है। डेटर की अपने हाउस प्रॉपर्टी है, वो डेट थोड़ी है। भाई मेरा क्वेश्चन सिंपल है, डेटर के पास कोई प्रॉपर्टी है, इंटरिम मॉरिटोरियम लग गया, क्या वो बेच सकता है या नहीं बेच सकता? सर लिखा नहीं है तो बेच सकता है ऑब्वियसली। है ना। चलो मैं कहीं और भी दिखाता हूं आपको इसी बात को, ठीक है जी। हेलो गए। साथ में सब चले। अच्छा, आपका मीटिंग तो इसके लिए रुकी थी। हम्म
मैं गाड़ी देखा, गाड़ी भी नहीं था उधर, उधर लगाया क्या आपने तो होटल के सामने? चलो इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन ये हमारा फ्रेम हो गया कि इंटरिम मोरेटोरियम में ये वाली बात नहीं लिखी है कि द डेटर शैल नॉट ट्रांसफर अलाइन इट एनकम्बर। सो द क्वेश्चन इज वंस इंटरिम मोरेटोरियम हैज कमेंस्ड whether the debtor can transfer, align it, encumber or dispose of. During bankruptcy there is a restriction. bankruptcy में तो है restriction आईआरपी पीरियड में भी हो जाता है सर, नहीं कर सकते आप। है। बैंक, अच्छा बैंकरप्सी इसके बारे में बोलते bankruptcy की बात कर रहा हूँ। हैं। ओके। मैं आपको एक सेक्शन बताता हूँ, सेक्शन है 159, सेक्शन 158 सॉरी, सेक्शन 158 अगर हम देखें तो क्या बोलता है, एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द डेटर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी एंड द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट शैल बी वॉइड। ठीक है, तो यहां क्लियर है कि 158 में एक बार आपने एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो वो वॉइड होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बैंक्रप्सी का प्रोविजन। अब बात आती है इंसॉल्वेंसी की। तो क्या इंसॉल्वेंसी में भी कोई ऐसा प्रोविजन है? लगता तो नहीं है। But it will be avoidable transactions, I think. हाँ वो तो हो ही जाएगा। यस यस, इट विल कम अंडर दोज ट्रांजेक्शंस, अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस। अनदर पॉइंट इज देयर आर लेसर रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी। जैसे सपोज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैव कमेंस्ड, वेदर ए पर्सन कैन ट्रैवल ओवरसीज। Yes. देयर इज नो जैसे रिस्ट्रिक्शन सर। जो फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश स्टार्ट में रिस्ट्रिक्शन है, Yeah. बैंक्रप्सी में भी रिस्ट्रिक्शन है। बैंक्रप्सी में सेक्शन है शायद 141, एक बार सेक्शन 141 भी पढ़ लेंगे। 141F है मेरे ख्याल, 141F, नॉट बी परमिटेड टू ट्रैवल ओवरसीज विदाउट द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट दैट इज अ सेक्शन इन बैंक्रप्सी। नाउ द पॉइंट इज whether there is any such restriction during insolvency also or not. इंसॉल्वेंसी में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं सर। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और बाउंसर। देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एंड इन दैट पार्टनरशिप फर्म वन ऑफ द पार्टनर्स इज ए कंपनी। दैट पार्टनरशिप फर्म हैज गिवन ए गारंटी। नाउ in partnership you have got the discretion. You can initiate insolvency against one or more partners or against the firm. Now you want to initiate insolvency against that partner which is a company, है ना? यस तो उस केस में आप कहाँ एप्लीकेशन लगाओगे, कौन से सेक्शन में लगाओगे एप्लीकेशन? सीआईआरपी में जाएंगे सर। सर, सेक्शन हाँ। 7 जाएगा सर। है सेक्शन 7 सेक्शन 7। Part 2. Part 2. पार्ट 2 की। हाँ जो भी होगा, मतलब वो ऑपरेशनल है या फाइनेंशियल करेक्टर है उसके हिसाब से जाएगा वो। 7 या 9 में कहाँ जाएगा, जैसे भी होगा। हाँ बट ये है कि हाँ उसकी CIR पे स्टार्ट होगी, है ना? ये भी तो क्वेश्चन आ चुका है अभी रिसेंटली वो एग्जाम जो में। अमाउंट भी होना चाहिए 1 करोड़ के अबव होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू है। वो तो होती है नॉर्मली, वो नॉर्मली होती ही है। हम्म, ठीक है जी, चलिए एक और जो यहाँ पर डिस्टिंक्शन है, थोड़ा सा पेक्यूलियरिटी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रेडिटर और डेटर कैन सीक चेंज ऑफ RP। सेक्शन 1998 अगर हम पढ़ते हैं तो 98 क्या बोलता है? 98 बोलता है
कि where the debtor or the creditor is of the opinion that the RP under section 97 is required to be replaced, he may apply, and adjudicating authority shall within 7 days make a reference to the board. Board within 10 days will revert, and creditors अच्छा, और ये भी लिखा है कि ड्यूरिंग implementation of the repayment plan also, meeting of creditors may decide to replace the RP with a new RP for implementation. इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि वेदर ए सिंगल क्रेडिटर और डेटर कैन मेक द एप्लीकेशन या कुछ परसेंटेज है। क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि इन CIRP भी नो कि भाई 66% मेजोरिटी से होगा। अब यहां लिखता है वो वेयर द डेटर और क्रेडिटर इज ऑफ द ओपिनियन। ये डेटर या क्रेडिटर, कौन सा डेटर या क्रेडिटर है? ऐसा लगता है ये डेटर या क्रेडिटर एप्लीकेंट की बात कर रहा है, जो 94 या 95 में यस सर, एप्लीकेंट है। डेटर अंडर सेक्शन 94 एंड क्रेडिटर अंडर सेक्शन 95 दोनों। हाँ, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन मतलब वही लग रहा है कि जो एप्लीकेंट है बेसिकली ये उसकी बात करना चाह रहा है कि भाई एप्लीकेशन जिसने लगाई वो जो अगर चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है। बट सर एक वो नहीं लिखा कि किसका अप्रूवल होना चाहिए, इधर अप्रूवल तो COC का होगा ही ना, ये इन तो दोनों के अप्लाई केसेस। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ही करेगा। अब बात ये है कि क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, या कितना अप्रूवल चाहिए, जब वो वाला पॉइंट। डेटर अप्लाई करेगा तो उसको क्या ये क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए क्या फॉर यहां तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एक बार रेगुलेशंस में देख लेते हैं कि रेगुलेशंस में कोई ऐसी बात लिखी है क्या। रेगुलेशंस में एक बार देखते हैं, सभी लोग एक बार देखिए कि यहां कुछ है क्या। रिप्लेसमेंट, एक जो बात रेगुलेशंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या कह रहा है कि भाई रेगुलेशन नंबर 11 सब रेगुलेशन 6, unless otherwise provided in the code, any decision of the creditors shall require approval of more than 50% of the voting share of the creditors who voted। यहां मोर देन 50% की बात कर रहा है कि अगर कोई परसेंटेज कहीं नहीं लिखी है तो क्या कह रहा है कि मोर देन 50% आपको लेना है ऑफ द क्रेडिटर्स हु वोटेड। एक तो कुछ हमें हिंट यहां पर मिला, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, ये कुछ कुछ मिला। जो परचेज सेल वाली बात थी ना, उसका रेफरेंस आपको कहीं कहीं रेगुलेशन नंबर 18 में मिलेगा शायद। रेगुलेशन 18 है परचेज ऑफ एसेट्स बाय सर्टेन पर्संस। भाई हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसने फाइल कर दिया और ये, तो क्या इस पे कोई बार है या नहीं। तो ये परचेज की बात कर रहा है। वो कह रहा है द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट परचेज और एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ गारंटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली without permission of the adjudicating authority, resolution professional or any partner or director, any professional, any creditor, any company where the guarantor or creditor is a promoter or director, any associate of the guarantor, creditor or RP। इसके अलावा एक और बात लिखी है, the adjudicating authority may set aside purchase or acquisition made contrary to the provisions of this regulation and may make such order as it may deem fit।
तो यहां थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता है। अब इसने ये नहीं लिखा क्योंकि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के रेगुलेशन है ये, तो इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है यहां पर रेगुलेशन नंबर 18 में। तो क्या हमारे में से कोई ढूंढ सकता है क्या ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन है जो बात कर, जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रेडिटर्स वांट टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो कोई परसेंटेज है क्या, या सिंगल क्रेडिटर बोलेगा तो रिप्लेस कर देगा? मुझे ऐसा लगता है कि 98 में जो लिखा है वेयर क्रेडिटर और डेटर, वो शायद 94 या 95 का रेफरेंस दे रहा है बेसिकली, तो मुझे भी वही लग रहा है सर। है ना? हालांकि क्लैरिटी नहीं है इसमें, लेकिन सपोज application has been admitted, committee of creditors has been constituted based on the voting share. Now for replacement कैसे होगा? मोर देन 50% से हो जाएगा, सिंगल क्रेडिटर हो जाएगा, या और कोई प्रोविजन है, क्या है? उसके अलावा एक और बात, जैसा हमारा सीआईआरपी में सेक्शन 28 है ना, विच रिक्वायर्स डिसीजन बाई 66% फॉर मेजर डिसीजन, तो यहां पर भी कोई ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है क्या इंसॉल्वेंसी में? ऐसा कोई सेक्शन है क्या कि भाई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अप्रूवल के बिना आप ये एक्शन नहीं ले सकते? ऐसा बैंक्रप्सी में तो है, अगर बैंक्रप्सी देखें तो बैंक्रप्सी में ऐसा सेक्शन है। सेक्शन 1111, हम्म सेक्शन 111, 109 to 11. हम्म So more than 50% of voting share of the creators who voted. Regulation 11. So किसका? इंसॉल्वेंसी का? बैंक्रप्सी? insolvency, sir. वो तो अभी देखा ही था हमने, जो जहां मोर देन 50% लिखा है। हाँ, ये सेक्शन 153, वन जैसे सेक्शन हमारा 28 है ना, ऐसा ही सेक्शन 153 है। बट 153 जो है ना वो बैंक्रप्सी में है कि अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्ट्स। But इसमें शायद वो नहीं लिखा हुआ है क्या? कि replacement of RP or RP. हाँ, वो तो नहीं लिखा, परसेंटेज भी नहीं लिखा उसमें। तो इंसॉल्वेंसी में जो परसेंटेज से रिलेटेड सेक्शन है,
एक तो रेगुलेशन नंबर 11(6) है, दूसरा ऑन रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान में कितने अप्रूवल चाहिए? 3/4, 3/4 या मोर देन 3/4? more than 3/4. Yeah. दोनों में फर्क है। Yes, sir. तो क्या है, 3/4 है, मोर देन 3/4 है? More than 3/4. हाँ। More than 3/4 in value. सेक्शन नंबर 111. 111. More than 3/4, 7 मोर more देन 3/4 इन वैल्यू, प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग। तो हमारा वो क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया कि आरपी के बारे में क्या होगा। आरपी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सेक्शन है 98 में, तो अगर एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई तो डेटर या क्रेडिटर में अप्लाई, है ना, एप्लीकेंट में अप्लाई, जिसने अप्लाई किया है। अदरवाइज मोर देन 50% से होगा, फिर मोर देन 50% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ द क्रेडिटर्स हु वोटेड, क्योंकि ये जनरल डिसीजन ही माना जाएगा, है ना। तो रेगुलेशन 11(6) इसका आंसर करेगा। इसके बाद फिर हम इसको ग्रुप में और डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ के, है ना। थोड़ा और खोजिए इस बात को कि भाई गूगल बाबा से पूछिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद में पब्लिक नोटिस की बात आती है, ठीक है। सेक्शन 102 है ना। अब ये बताइए, पब्लिक नोटिस का कोई फॉर्म है क्या? नहीं सर, फॉर्मेट तो नहीं है कुछ। फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि बैंक्रप्सी में अगर जो पब्लिक नोटिस है उसका फॉर्मेट है। हमारा इंसॉल्वेंसी में फॉर्मेट है, लिक्विडेशन में फॉर्मेट है, वॉलंटरी लिक्विडेशन में फॉर्मेट है। अब ऐसे प्री पैक है, प्री पैक में कोई पब्लिक नोटिस जो है न्यूज़पेपर में नहीं होता। वो तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर ही रहता है। हाँ, अब यहां पर जो है इंसॉल्वेंसी में क्या पेपर में पब्लिश करना है या नहीं करना है? करना पहले है, तो ये बता दीजिए। करना होता है सर। हाँ, ये तो सेक्शन में लिख दिया, 102 के सब सेक्शन 3 में लिख दिया, पब्लिश इन एटलीस्ट 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाकुलर। अब बात ये है कि फॉर्मेट है या नहीं है। फॉर्मेट ऐसा नहीं लगता कि कोई फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं है सर। है ना। फॉर्मेट कोई इसका नहीं है। उसमें लिखा हुआ है क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। हाँ, डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर, पर्टिकुलर्स ऑफ द आरपी, लास्ट सर एक्चुअली इसमें जो लिख रहा है वो है जो ए विल शैल इश्यू पब्लिक नोटिस, मतलब इसमें आरपी पब्लिक नोटिस इश्यू नहीं कर रहा है, डबल ए ही कर रहा है। नहीं सर, आरपी करेगा। नहीं, 102 में जैसे लिख रहा है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इश्यू पब्लिक नोटिस विद इन 7 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर। हाँ, वो लिखते ये है पर वो करता आरपी ही है। हम्म। करता वो आरपी, आरपी को ना बेसिकली कुछ एक्सपेंसेस दिला देते हैं वो एप्लीकेंट से, 50,000 रुपए या इस तरह से। तो वो कर, ऑर्डर में लिख डायरेक्शन देगा मे बी कि हाँ हाँ आप आरपी सेल इशू हाँ पब्लिक में भी डायरेक्शन रहेगा वहां पे। हाँ। तो वो नोटिस पब्लिक फॉर्मेट का कोई भी नोटिस इशू वो कर लेगा, वहीं सीआईआरपी से देख लेगा, कहीं से भी देख के उसको बना लेगा। अच्छा, अब क्लेम्स में कोई फर्क है क्या? जो सीआईआरपी के टाइम पर क्लेम सबमिट होते हैं या इंसॉल्वेंसी में क्लेम सबमिट होते हैं, कोई फर्क है क्या इसमें? फॉर्मेट फॉर्मेट पहले खाली अमाउंट दे देना है, बाद में प्रूव करना है, क्या करना है? और दूसरा क्वेश्चन, कोई पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस है, मान लो ड्राइवर सैलरी है, बिजनेस के नहीं है, तो क्या वो भी आ जाएंगे या नहीं आएंगे, या सिर्फ बिजनेस के आएंगे? क्योंकि ये बातें कहीं लिखी नहीं है। भाई मान लो इसने, डायरेक्टर ने कोई ड्राइवर रख रखा है अपना, अब इसकी इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो रही है, उसकी सैलरी नहीं दे रखी, है ना। पर्सनल नेचर का भी तो हो सकता है ना। तो उसका क्या होगा, वो इसमें आएगा या नहीं आएगा? सर आना चाहिए। आना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल है। हाँ सर। Yes. इंडिविजुअल में तो उसके जो भी होंगे सारे ही आने चाहिए, है ना। यस आ गया सर। एक्चुअली इसमें कोई बाइफर्केशन है ही नहीं फाइनेंशियल और ऑपरेशनल का, इसमें ओनली क्रेडिटर्स वर्ड यूज किया है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर क्या लिखा है, रजिस्टर द क्लेम्स। यहाँ पर क्लेम्स रजिस्टर कर रहा है वो, है ना।
और प्रूविंग ऑफ क्लेम अलग है फिर इसमें। यहां जो है पहले ये रजिस्टर कर रहा है, ये लिस्ट बना लेगा पहले 104 में। अब इंसॉल्वेंसी में चलते हैं एक बारी। सर वो फॉर्म बी में ही भेजेगा रजिस्ट्रेशन की, मतलब क्लेम भी रजिस्टर करवा रहा है तो फॉर्म बी में ही भेजेगा। हाँ, फॉर्म बी में ही है। यस, रजिस्टर और सबमिशन इज द सेम आई बिलीव हाँ, यहाँ। क्लेम विथ प्रूफ। अच्छा, उसके अलावा अब मान लीजिए रीपेमेंट प्लान है, ठीक है। अब कहेगा भाई देखो ऐसा है, तुमने तो मेरी इंसॉल्वेंसी कर दी, मुझे रोटी पानी भी तो खानी है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए मुझे कुछ अलाउ करो, तो कितना परसेंट अलाउ करेंगे? जगह पे लिखा हुआ है सर। हाँ। उसमें वो कहता है कि 90% तक आपको अलाउ कर सकता है, 10% तो आपको रीपेमेंट में यूटिलाइज करना पड़ेगा। अभी आपको बात ढूंढनी है कि कहाँ लिखा हुआ है ये बात। ये बात मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद एन इंडिविजुअल ना। तो वो कह रहे हैं भाई देखो ऐसा, मुझे रोटी पानी भी खानी है, कि मैं तुम्हारा सारा रीपेमेंट ही कर दूंगा, बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे और भी चीजें हैं। ये सो अपना एस्टिमेटेड खर्चा देता है कितना सब हाँ खर्च। हाँ हाँ हाँ। तो वो बात कहाँ लिखी गई है बस ये बता दीजिए। आई थिंक रेगुलेशन में ही रहेगा सर। हम्म, मिल गया। ये आपको मिला इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन नंबर 17(1)(c), देखिए एक बार जरा। Minimum budget for the duration of the repayment plan to cover the reasonable expenses of the guarantor and member of his immediate family to the extent they are dependent on him, provided that at least 10% of the realizable income of the guarantor shall be utilized for repayment वाला। तो हम्म, बैक कैलकुलेशन है, मतलब 10% यहाँ बोला तो 90% जो बचा। हाँ, यस। 90% तक पर्सनल यूज में ले सकता है, 10% तो उसको कम से कम रीपेमेंट में यूज करना ही मिनिमम है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या वो रीपेमेंट के लिए लोन भी ले सकता है क्या? यस, कहीं लिखा तो नहीं है, मतलब बना तो नहीं, बार्ड नहीं है। नहीं, लिखा हुआ है ले सकता है। इसी का अगला पॉइंट है डी, 17(1)(d), फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। अच्छा, उसके अलावा जो फीस होती है पेमेंट, उसकी फीस के बारे में कहाँ प्रोविजन है? जो रेजोल्यूशन प्रोविजनल है इंसॉल्वेंसी में, इसका प्रोविजन कहाँ पर लिखा गया है? सर ऑर्डर में ही रहता है नहीं, मतलब ऑर्डर की फॉर द बात छोड़ दो, सेक्शन में कहाँ लिखा है? सेक्शन में। सेक्शन 105, सेक्शन 105 3B पढ़िए एक बार जरा। Provision प्रोविजन for फॉर। payment of fee to the resolution professional. हम्म, ओके, वो प्लान में लिखना होगा। हाँ, प्लान में ये यहाँ पर।
अच्छा, एक बार प्लान दे दिया, क्या उसको रिवाइज कर सकता है? After negotiation with the creditors, he can revise once. यहाँ लिखा हुआ है ये। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो बात हो रही थी रिगार्डिंग राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। भाई इन CIRP वी नो, इन CIRP वेदर सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन टेक एनी एक्शन, द आंसर इज नो, है ना? बिकॉज 14 सेक्शन 14 प्रोहिबिट्स, सेक्शन 14 में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो कोई एक्शन नहीं ले सकता ड्यूरिंग CIRP। Moratorium लिक्विडेशन में ले सकता है ना? लिक्विडेशन के बारे में सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 अलाउज दिस। तो सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 से सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, और सेक्शन 52 में राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ठीक है, इतना तो हमें मालूम ही है सब। अब बात यहां आ जाती है कि इंसॉल्वेंसी में क्या होगा। इंसॉल्वेंसी में कहता है कि राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान। क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन वोट ऑन रीपेमेंट प्लान? द आंसर इज यस, है ना? क्या कहता है सेक्शन 110 सबसेक्शन 2 पढ़ लीजिए एक बार, अजय जी। सेक्शन 110 सबसेक्शन 2। A secure creditor participating in the meeting of the creditors and voting in relation to the repayment plans shall forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan in accordance with the terms of the repayment plan. तो अगर वो वोटिंग करना चाहता है तो एनफोर्स नहीं कर सकता। थर्ड भी पढ़ लीजिए। Where a secure creditor does not forfeit his right to enforce security, he shall submit an affidavit to the RP at the meeting of the creditors stating that the right to vote exercised by secured creditor is only in respect of the unsecured part of the debt. That the right. ये क्या बोल रहा है सर? Where a secure creditor does not forfeit his right to enforce security, he shall submit an affidavit to RP at the meeting of the creditor stating that the right to vote exercised by the secured creditor is only in respect of the unsecured part of the debt. Okay, जो उसने ऐसा हो सकता है ना कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड भी हो, राइट, ये उसकी बात कर रहा है। And the estimated value of the unsecured part. In case the secured creditor participates in the voting on the repayment plan by submitting an affidavit, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debts. ठीक है? The concurrence of the secured creditor shall be obtained if he does not participate in the voting on repayment plan, but provision for the repayment plan affects his right to enforce security. ठीक है? अब वो कह रहे जी मैं तो वोटिंग में आई विल नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन जो गारंटर है उसका एक ही मकान है। ठीक है, वो मकान इसी के बंदे के पास मॉर्टगेज है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और रीपेमेंट प्लान में वो यही बता रहा है भाई मैं इस मकान को बेच करके या इस पर और लोन ले करके मैं पेमेंट कर दूंगा सब लोगों की, जिसकी भी पेमेंट करनी है ना? क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, लोन बहुत कम है। तो उस केस में क्या होगा? उसमें उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी उस सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्योंकि वो अलग से भी बेच सकता है, राइट? ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां देखिए, यहां पर कोई बार नहीं है। इंसॉल्वेंसी में भी सिक्योर्ड क्रेडिटर में स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, है कि नहीं? जस्ट लाइक वो रिलिंक्विश करना चाहता कि नहीं अपना सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इसमें एक ही है कि जो डेटर है, डेटर ये कह सकता है कि भाई आई विल टेक मोर लोन ऑन दिस सिक्योरिटी, है ना? क्योंकि लोन अमाउंट कम है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा है, तो आई विल टेक मोर लोन एंड आई रीपे द एंटायर अमाउंट, ऐसा बोल सकता है। उसको लेंडर का अप्रूवल लेना पड़ेगा हाँ basically। हाँ, उसको अप्रूवल है। है ना? और अप्रूवल या मॉडिफिकेशन शैल बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 3/4 इन वैल्यू, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन प्लान।
अच्छा, सपोज अप्रूव हो गया, इम्प्लीमेंटेशन में क्या आरपी चेंज हो सकता है? वो बात वही लिखी गई थी जहां हम बात कर रहे थे, डेटर और क्रेडिटर वाली, सेक्शन 98। 97, 98, yes. 98 में लिखा है ना, 98 में क्या लिखा है? Without prejudice to the provisions contained in subsection 1, the creditors may apply to the adjudicating authority for replacement of the RP where it has been decided in the meeting of the creditors to replace the RP with a new RP for implementation of the repayment plan. अब यहां एक बात ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ क्रेडिटर्स वर्ड लिखा है और ये भी लिखा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड इन द कमिटी इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। और मीटिंग के बारे में हमने रेगुलेशन देखा, रेगुलेशन नंबर 11 था, है ना? रेगुलेशन नंबर 11 बोलता है कि मोर देन 50% किसी भी डिसीजन के लिए जहां परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है, 11(6). तो बेसिकली ये प्लान में मेंशन करना होता है कि हाँ, RP1 नीड टू बी रिप्लेस और नॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन द डिस्चार्ज ऑर्डर, डिस्चार्ज ऑर्डर में होगा कि भाई कितने की पेमेंट हो गया। भाई 3 सिचुएशन हो सकती है इंसॉल्वेंसी में, क्या क्या? पहली, कुछ भी पेमेंट नहीं किया, जीरो पेमेंट किया, है ना, या रीपेमेंट प्लान अप्रूव ही नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया, बैंक्रप्सी जाएगा। फिर बैंक्रप्सी हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को दे दिया, कुछ को नहीं दिया, तो फिर उस केस में क्या होगा? जैसे सपोज देयर वर 10 क्रेडिटर्स, 2 का पेमेंट हो गया, तो अब क्या होगा? बाकी 8 बाकी रह गए। प्लान अप्रूव नहीं होगा सर, मैं सा प्लान उसमें अप्रूव ये करेगा। होगा कि उनका डिस्चार्ज ऑर्डर हो जाए, उस डिस्चार्ज में लिख दिया जाएगा कि भाई ये वाले डेट डिस्चार्ज हो चुके हैं, उससे तो खत्म हुआ ना, ये डिस्चार्ज ऑर्डर लिखता है। On the basis of the repayment plan, the resolution professional shall apply to the A for a discharge order in relation to the debts mentioned in the repayment plan, and the adjudicating authority may pass such discharge order. क्या? अब इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक केस स्टडी देख लेते हैं, है ना, फिर आगे चलते हैं, फिर बैंक्रप्सी पर चलेंगे। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे मेरे ख्याल, है ना? ये आंसर मैंने ग्रुप में एक एमसीक्यू भी डाला है आज, ऑनलाइन एमसीक्यू भी डाला है, मैं उसको अपडेट कर रहा हूं, मैंने चैप्टर 14 तक अपडेट कर दिया वो, क्योंकि क्या है वो 2018 का बना हुआ था और मैंने क्या किया उसमें ऑप्शंस भी चेंज किए हैं। ऑप्शंस में थोड़ी सी मिलती जुलती डाल दी, उसमें ऑप्शन बिल्कुल ही ऐसे थे कि अंधे को भी पता चल जाए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ऑप्शंस भी मैंने चेंज करके उसको क्लोजर कर दिया उसको, ताकि मिलती कम से कम ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए कि एक बार पढ़ना तो पड़े ना, ये नहीं कि बिना पढ़े ही आपको आंसर पता चल जाए ऑप्शंस। तो उसको भी देखिएगा एक बारी। ये पढ़िए जरा एक बार, प्रदीप क्या नाम, प्रदीप जी एक बार की स्टडी पढ़िए जरा। John is a software professional working in an MNC in Gurgaon. He has to travel worldwide in connection with his employment. His father-in-law, Mr. Thomas, is into business and has availed loan facility from PNB of rupees 2 crore 50 lakhs from the bank, for which Johnny has executed a personal guarantee for 2.5 crores. His father-in-law had informed
has formed a company, JSG Limited, which has plants in Hyderabad, Delhi, and Kolkata. The registered office of JSG Limited is in Chennai. On default by JSG Limited, bank invoked the bank guarantee, which remained unpaid partly. As on the date of invocation of bank guarantee, rupees 25 lakhs were lying in the bank account, which were transferred to the account of PNB. Lily, wife of John, is also a software professional working for an MNC. Various assets held by Lily and John are as under: two cars held by John and Lily, primarily used for commuting to office; two LIC policies on which loan facility has been availed to prepay the educational loan taken by John for his studies; gold jewelry worth rupees 12 lakhs. He has created a private trust for the benefit of their children. John has approached you to take your advice in this regard. पहले तो ये बताइए इसमें कि whether we can proceed against John in view of these facts. Yes, sir, he is a guarantor. है ना, John is a guarantor. Yeah, ठीक है. correct. तो where the application will be filed? The location where the Gurgaon. is the residential state of the John. नहीं, पर्सनल गारंटर में तो सेक्शन 60 से गवर्न होगा ना. सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 पढ़िए. Section 60. Okay, the A in relation to the insolvency resolution and liquidation for corporate person, Chennai. including corporate debtor and personal guarantor thereof shall be the National Company Law Tribunal having territorial jurisdiction over the place where the registered office of the corporate debtor corporate person is Chennai. located. हाँ, ठीक है ना. Chennai. तो ये पर्सनल गारंटर तो है ना ये. Corporate person is located मतलब Chennai, sir. जिसके अगेंस्ट Chennai, sir. Chennai. एनसीएलटी चेन्नई में जाएगा एप्लीकेशन ये, Yeah. है ना. एनसीएलटी चेन्नई में जाएगा. सेक्शन 60 सबसेक्शन 1. Suppose John had taken this loan in his individual capacity, then it will be decided where John resides or personally works for gain. वो अलग चीज है. उसके पे शायद सेक्शन 179 है मेरे ख्याल से. वो सेक्शन कौन सा है? शायद 179 है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 179 है. Yes, sir. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप. लेकिन वो तब है जब ये कॉर्पोरेट वाला फंडा नहीं हो तो. अगर इसने गारंटी दे रखी है इन रिलेशन टू ए कॉर्पोरेट लोन तो सेक्शन 60 सबसेक्शन 1. यहां पर भी लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60. इफ वी रीड सेक्शन 179 इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60. ठीक है जी. तो ये बात तो क्लियर हो गई. हमारा एनसीएलटी चेन्नई में एप्लीकेशन लगेगा. ठीक है. अच्छा, लिली जो है, 2 कार हैं, एक जॉन के पास है और एक लिली के पास है. तो अब ये बताइए कि एक्सक्लूडेड एसेट्स में दोनों कार आएंगी या एक कार आएगी? एक कार आएगा सर. भाई सेक्शन 79 देखो. सेक्शन 79 देखिए, एक्सक्लूडेड एसेट्स में डेफिनेशन देख लीजिए. Unencumbered tools, books, vehicles, and other equipment as are necessary to the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business or vocation. हाँ, तो आप ये देखिए, यहां पर इमीडिएट फैमिली तो लिखा नहीं है, डेटर और बैंकक्रप्ट लिखा है ना. तो एक्सक्लूडेड एसेट्स में जो कार ओन्ड बाय जॉन जो है, कार हेल्ड बाय जॉन इज, इट फॉल्स विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूडेड. Exclude asset. अच्छा, अब आप ये चलो, इसके अलावा ये बताइए, ये दोनों कार की इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म के अंदर देनी है या नहीं देनी है? सर जो देना नहीं है. एक ही Yes, का to देगा. you. All assets.
अभी देनी हम है सर। फॉर्म, अब वी वर जस्ट नाउ सीइंग द फॉर्म आल्सो, है ना? फॉर्म देख रहे थे ना हम। सपोज, अब इसमें ये है कि सपोज जॉन वांट्स टू फाइल दिस एप्लीकेशन, भाई वेदर जॉन कैन फाइल फॉर हिज इंसॉल्वेंसी? Yes. जॉन फाइल कर सकता है ना? तो जॉन के लिए कौन सा फॉर्म है? व्हाट इज द फॉर्म फॉर दिस, फॉर हिम? जॉन ने अगर फाइल करना हो तो कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन Form फाइल A. करें? Form A. ए फॉर्म ए, अच्छा ठीक है। तो फॉर्म ए में इसमें सर पॉइंट नंबर 11 है, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ गारंटर एंड इमीडिएट फैमिली एज ऑन द एप्लीकेशन डेट। हाँ, This will include all asset of guarantor, यस सर irrespective of them being excluded asset. Please mention which asset may be excluded assets. हाँ, तो अब इसमें दोनों आ जाएंगे, एसेट्स ऑफ गारंटर एंड इमीडिएट फैमिली। तो जो लिली वाली कार है वो भी इसके अंदर आ जाएगी, है ना? यहां पर वो एसेट्स के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो एक्सक्लूडेड एसेट्स में नहीं आएगी। So kind of mention only, सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा है अभी। हम्म, रिमूवेबल दे रहा है, फिर व्हीकल्स दे रहा है। हाँ, चलिए, अच्छा। और इसका क्या होगा, गोल्ड ज्वेलरी का? दैट इज आल्सो एक्सक्लूडेड एसेट्स एक्सक्लूडेड सी में कितना? अप टू 1 लाख। अप टू 1 लाख है। 1 लाख हाँ हाँ ओके 11 lakh will be included. हाँ, उसमें लिखा है डेटर और इज इमीडिएट फैमिली, फैमिली मेंबर है ना? और LIC पॉलिसीज का क्या होगा? सर वो तो इनकम्बर्ड है ना सर हाँ, ही हैज टेकन ए लोन, लोन दीज आर एनकम्बर्ड, सो दैट इज नॉट ए एक्सक्लूडेड एसेट राइट, ठीक है। तो उस पे उसने लोन लिया हुआ है LIC का, तो और ये जो है, that ये प्राइवेट ट्रस्ट का क्या होगा? Suppose he has created a private trust and there is some money. He is depositing on regular basis some money in that private trust. Or he has already deposited say 50 lakhs in this private trust कि भाई when my children will come of age तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस इसमें से हो जाएंगे। तो suppose you are an RP, so what information you will need to probe further regarding this? एसोसिएट में आएगा ये प्राइवेट ट्रस्ट। हाँ, तो आप एक बार इसमें वो हम देख लेते हैं, 79 में ही इसके बारे में लिखा हुआ है एसोसिएट। एसोसिएट में क्या लिखता है? ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट यस सर in which the beneficiaries of the trust include a debtor. अगर या तो जॉन बेनिफिशियरी है या नहीं है, so we have to ask this question whether John is a beneficiary or not. So it may be the case that John is not a beneficiary in this, है ना? Yes. बेनिफिशियरीज कौन है? उसके चिल्ड्रन है। Or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. तो डेटर के बेनिफिट के लिए तो है नहीं यहां पर। क्यों जी? Yes, sir. ये जो है, चलो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ही हैज डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹50 lakhs in a trust. The trustee is his close friend. ठीक है? The trust money shall be utilized once the children need it for higher education. ठीक है जी? तो अब ये बताइए, ट्रस्ट एसोसिएट है या नहीं है? नहीं सर नहीं रहेगा।
और इसका जो फ्रेंड है वो एसोसिएट है कि नहीं है? वो yeah, he is a, because he is a trustee, he is associate. नो, ट्रस्टी तो है, नहीं सर, नहीं रहेगा। बट बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी नहीं है सर। बेनिफिशियरी नहीं, तो है नहीं नहीं रहेगा। बेनिफिशियरी। अगर फ्रेंड, बेनिफिशियरी जॉन तो है नहीं इसमें। हाँ yeah. Beneficiaries of the trust include a debtor? No. Whether beneficiaries of the trust include John? The answer is no. No. Or the terms of the trust confer a power on the trustee, which may be exercised for the benefit of the debtor. The power is being used for the benefit of the children of the debtor, not for the debtor. क्यों? यस यस सर। Now let us see. So what is the worst thing that can happen in this regard? क्या हो सकता है इसमें? इस सिचुएशन में क्या होगा? भाई वो पूछता है यार, जब बुरा वर्स्ट वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ? जॉन बोल रहा है, आपसे एडवाइस लेने आया है। Bankrupt, sir, because 2.5 crore is the debt amount, guarantee amount, हाँ and हाँ, his assets are लेस देन दैट। Much lesser than that. much lesser, not even 20%. यस यस। और वाइफ को भी बैंकक्रप्ट हो सकती है क्या डिक्लेयर? वाइफ हो उसके सकती है क्या? नहीं सर, उसके No, sir, because she is not the guarantor. हाँ, और only वेदर द एसेट्स ऑफ वाइफ विल आल्सो कम इनटू पिक्चर या नहीं? नहीं No, सर, only sir. to the portion to the extent that the wife holds the property, the husband hold the proper share of the property of the his his wife, मतलब जितना भी शेयर रहेगा उस किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उतना तक, टू द एक्सटेंट, इन केस ही इज जॉइंट ओनर। राइट राइट, जॉइंट ओनर। तो आपके हिसाब से एक्शन इसमें जॉन पे ही हो सकता है ना, वाइफ पे नहीं हो सकता? यस यस सर। कैन इज फॉरेन ट्रेवल भी रिस्ट्रिक्टेड? भाई जॉन Yes. कह रहा है यार मुझे तो बाहर जाना है। सर बैंकरप्सी में बाढ़ यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, तो 141(1)(f) में बाढ़ है ना? हम्म, तो उसमें ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना ट्रैवल, दे डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी में नहीं है, बैंकरप्सी में है ना? कैन देयर पर्सनल एसेट्स बी अटैच्ड? कार का क्या होगा? It's a excluded asset. Excluded assets. कार इज एक्सक्लूडेड, कार ओन्ड बाय जॉन इज एक्सक्लूडेड। इंश्योरेंस पॉलिसीज unencumbered। Already taken encumbered assets. एनकम्बर्ड है तो एक्सक्लूडेड में नहीं आएगा, है ना? Right. गोल्ड ज्वेलरी अबव 1 लाख, है ना? 1 लाख 1 lakh, तक। above 1 lakh it will be. और प्रॉपर्टी इन द ट्रस्ट? No, because children are beneficiary. अच्छा, अब ये आप उसको क्या कहोगे भाई, वो खुद एप्लीकेशन फाइल करे या बैंकर फाइल करे, कौन सा बेनिफिशियल रहेगा? अब पूछ रहा है जी बताओ, मैं खुद फाइल कर दूं या बैंकर फाइल करेगा, कौन सा सही रहेगा? मतलब खरबूजा चाकू को काटेगा या चाकू खरबूजे को काटेगा, कैसा सही रहेगा? ऐसा कोई बेनिफिट तो लिखा नहीं है कि इफ द गारंटेड फाइल इटसेल्फ, ऐसा कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ तो लिखा तो नहीं। बैंकर फाइल करेगा तो फीस बैंकर को पेमेंट करनी पड़ेगी आरपी नहीं, की। प्लान में से देगा जो भी नहीं पर हाँ, इधर लेकिन कम से कम उसको प्रोविजन देना पड़ेगा ना, अगर खुद फाइल करेगा तो। वो तो प्लान, रीपेमेंट प्लान में रहेगा सर वो तो। हम्म। एनीवे कोई बेनिफिट तो नहीं है। हाँ, सिर्फ यही है कि वो नेगोशिएशन पावर उसकी हो सकती है कि भाई आरपी के साथ फीस नेगोशिएट कर सकता है वो। इमोशनल फ्रंट पे आ सकता है कि मैंने तो सामने से बता दिया आपको, थोड़ा सा रहम कर दो। अच्छा, वो जॉन कह रहा है भाई मैं तो इंसॉल्वेंसी मुझे सब अपने आप ही आता है, मैं अपने आप ही केस फाइट कर लूंगा, तो कर सकता है क्या? नहीं सर, आरपी अपॉइंट करना होगा, है? हाँ, इंसॉल्वेंसी वो कह रहा है प्रोफेशनल। मैंने तो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन का सिलेबस पढ़ा हुआ है मुझे नहीं, थ्रू आरपी लिखा हुआ है सर। है? हाँ। Yes. हाँ, तो उसमें चाहे एप्लीकेशन खुद फाइल कर सकता है, लेकिन बाद में तो है एडजुडिकेटिंग Yeah. अथॉरिटी अपॉइंट कर देगी। Right.
Can he take divorce from his wife on paper so that his wife is not involved into all this? और उस केस में क्या होगा? जो एलिमनी जो ग्रांटेड बाय कोर्ट है उसका क्या होगा? मान लो वो कहता है भाई हम पेपर पे डाइवोर्स, वैसे बड़े बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं कि डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर भी इकट्ठे रहते रहते हैं, वो भाई पेपर पे डाइवोर्स ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा? जो एलिमनी ग्रांट होगी उसका क्या होगा? कोर्ट से डिसाइड कर देगा। साइड में रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो एक्सक्लूडेड डेट में आ जाएगा। Yes. Excluded debt में आ जाएगा। कितना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का पीरियड कितना है? 180 days। 180 days. अच्छा, वेदर ही कैन कंटिन्यू इन हिज एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, कर सकता है सर, हैं? कर सकता है सर, कंटिन्यू कर सकता हाँ, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, है, खर्चा एम्प्लॉयमेंट चलाना में कोई पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। But he cannot become a director in any company. आई थिंक वो उसमें था, दूसरे केस में था। है? इसमें तो कई बार नहीं कि वो डायरेक्टर नहीं रह सकता। इंसॉल्वेंसी में है या बैंक्रप्सी में है वो? बैंक्रप्सी में है सर, Bankruptcy बैंक्रप्सी के में। बाद नहीं रह सकता। हाँ, इंसॉल्वेंसी में तो कुछ ऐसा बाहर ही नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिए। इंसॉल्वेंसी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो ये मान रहे हैं ना, हो सकता है ये पेमेंट ही कर दे यार, इस पे इतने पंगे क्यों लगाने, क्यों? ऐसा भी हो सकता है ना, ये पहले ये पूरे पैसे दे देगा मांग मूंग के कहीं से। तो इसलिए इंसॉल्वेंसी में ना तो बाहर ट्रेवल करने पर कोई बैर है, कोई कोई बार नहीं है ऐसा। अच्छा, अगर कोई बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए तो क्या फिर वो एम्प्लॉयमेंट में रह सकता है? रह सकता है हाँ, फिर भी कोई बार नहीं है, बिल्कुल सर, ठीक। ट्रेवलिंग पे बाहर है उसका। ट्रेवलिंग पे बाहर है, ही कैन नॉट अज्यूम एनी पब्लिक ऑफिस, एमपी एमएलए वगैरह नहीं बन सकता, है ना? अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, सपोज इज ए पार्टनर ऑल्सो इन ए फर्म, तो क्या इसको पार्टनरशिप फर्म को भी बताना पड़ेगा क्या? Yes, sir. Yes. ये कहाँ लिखी है बात? वो 141C पे। 141 तो बैंक्रप्सी हो गया ना, हाँ, वो देन सॉरी, सेम। अभी इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पार्टनरशिप में आई डोंट बिलीव ऐसा कुछ होगा, क्योंकि छोटा, इट्स नॉट कॉर्पोरेट पर्सन एक्चुअली। नहीं नहीं, he has to ऐसा है, inform. मतलब जॉन है जैसे, तो हम्म। जॉन में भी ये पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो ना, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन केस इज ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, वेदर इज ऑब्लाइज्ड टू इन्फॉर्म हिज पार्टनर्स ऑल्सो दैट इज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी। Yes, sir. Section 85 पे सर, 85. यस यस। 85 तो फ्रेश स्टार्ट में पहुंच गए आप। सर बताना तो पड़ेगा ही उसको कि मेरे अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। तो ये कहाँ लिखा है? मैं वही तो बात है ना, लिखा कहाँ है ये? बोनाफाइड डिक्लेरेशन सर। भाई जैसे आपने सही बोला, वो 85 तो ठीक है, 85 तो आपका आ गया ना कि he has to disclose, he has to inform his business, but that is regarding fresh start. My question is related to insolvency. तो इंसॉल्वेंसी में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या? बताना है क्या कहीं, या बैंक्रप्सी में बताना है क्या? Yes, sir. Bankruptcy 141. बैंक्रप्सी में उसको 141 में बताना है। Yeah. Yes, he has to be required to inform his business partners that is undergoing a bankruptcy process. तो 141 में तो है, but in insolvency there is no such restriction, है ना? सेक्शन Insolvency में 95 1 में भी मेंशन है सर। है? सेक्शन 95 1 में भी मेंशन है, हाँ, required to disclose all relevant information including details of their assets and liability, guarantee, etc. कहाँ पर? 90
95(1). 95(1) में तो कुछ भी नहीं है लिखा। डेटर्स को सर डिस्क्लोज करना है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तो इफ ही इज पार्टनर इन ए फर्म इट इज आल्सो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। नहीं, सेक्शन 95 बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो आप? सेक्शन 95। सेक्शन 95 में तो क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाता है। ओके। नाइन्टी सिक्स टू में सर, 96(2), individual need to disclose the information as part of in the insolvency resolution process. 96(2), your debtor to provide information about debt, including any guarantee given. As guarantor of a corporate debtor and partner in a firm, it is likely that individual would need to disclose this information 96(2) as तो ये part. सेक्शन में तो कहीं आप कहीं और ही से पढ़ रहे हो, कोई ये बेयर कोड से नहीं पढ़ रहे आप। Okay. कहाँ से पढ़ रहे हो आप? बेयर कोड तो कुछ और ही है। Yes. 96 तो इंटरिम मॉनिटरिंग। Interim moratorium. My question is, insolvency proceedings have started against John. So whether there are any restrictions या जॉन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी बेचे, चाहे वो पार्टनरशिप और में पार्टनर को बताए नहीं बताए, कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है? कोई भी नहीं है। हाँ जी भाई, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो हमने देख ही ली ना, वो रिस्ट्रिक्शन तो हमने देखी थी ना सेक्शन 101 में। द डेटर shall Sir, not 95. The debtor shall not transfer, alienate, encumber or dispose of any of his assets or his legal rights or beneficial interest therein. तो इतना तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई उसको अगर कोई उसके पास एसेट्स हैं तो उसको ट्रांसफर, अलाइनेट, एनकम्बर या डिस्पोज ऑफ नहीं करने हैं, है ना। इसके अलावा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आती है, कोई रिस्ट्रिक्शन इसके अलावा? हाँ जी actually there are not much restrictions during insolvency because they are supposing कि भाई everybody would like to avoid bankruptcy, तो चाहे उसको कहीं से लोन देकर लेकर के देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो कर देगा पेमेंट उसकी। ठीक है सर, आज we are over by time. हाँ जी सर 9:41 हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मुझे पता ही नहीं चला, मैं सोचा अभी तो 9 ही बजे। सर जो दूर रहते हैं उनके लिए टेंशन होती है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। थैंक यू सो सर। वी कैन कंटिन्यू टुमारो, नो इश्यूज, ठीक है, ओके। यस सर। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। एक्चुअली